जिस तरह हम गैल्वेनोमीटर से करंट की डिटेक्शन को फाइंड आउट करते हैं और जिस तरह हम वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और फर्दर इंस्ट्रूमेंट एवोमीटर और मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं डिफरेंट टास्क के लिए, इस तरह थर्मोकपल को हम हाई करंट और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थर्मोकपल का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जो है उसे रीड करते हैं और फर्दर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये बनता किस तरह है, ये वर्किंग क्या है और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें कौन से हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। इन प्रैक्टिकल यूज़ द वोल्टेज generated at a single junction of two different types of wire is what is of interest, as this can be used to measure temperature at very high and लो टेम्परेचर। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम इसके ज़रिए थर्मोकपल्स के ज़रिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। The magnitude of voltage depend on the types of wire being used. Generally, the voltage is in the microvolt range and care must be taken to obtain a usable measurement. Although very little current flows, power can be generated by a single thermocouple junction. Power generated using multiple thermocouples as in a thermocouple is common. Definition देखते हैं। Thermocouple is an electrical device consisting of two dissimilar electrical conductors forming an electrical junction. A thermocouple produces a temperature dependent voltage as a result of feedback effect. अब feedback effect हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो टॉपिक नहीं देखते, उस वीडियो को नहीं देखते, तो आपको थर्मोकपल की समझ बिल्कुल नहीं आएगी, इसलिए पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। And this voltage can be interpreted to measure the temperature. Thermocouple are widely used as temperature sensor. अब ये तो हमें पता चल गया कि थर्मोकपल के ज़रिए हम हाई और लो टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमारे पास दो वायर्स होती हैं और दोनों डिसिमिलर कैटेगरीज की होती हैं और उसकी मदद से हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। इन 1821 द जर्मन फिजिसिस्ट Thomas John Seebeck discovered that magnetic needles held near a circuit made up of two dissimilar metals got deflected when one of dissimilar metal junction was heated. यानी कि जो दो हमारे पास वायर्स होंगी, मेटल वायर्स होंगी थर्मोकपल्स की, उसमें से जब हम एक को हीट अप करेंगे तो वो आपस में डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। एट द सेम टाइम Seebeck refers to this consequence as thermomagnetism. The magnetic field he observed was later shown to be due to thermoelectric current. How does thermocouple work? When two wires composed of dissimilar metals are joined at both ends and one of the end is heated, there is a continuous current which flows in the thermoelectric circuit. If this circuit is broken at the center, the net open circuit voltage, the Seebeck voltage, is function of junction temperature and the composition of two metals, which means that when the junction of the two metal is heated or cooled, a voltage is produced that can be correlated back to the temperature. तो अब इस सारे होल प्रोसेस की आपको समझ आ गई होगी कि जब टू डिफरेंट वायर्स में से हम एक वायर को भी हीट अप करेंगे, उसमें से करंट गुजरेगा और फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि डिफ्लेक्ट करेगा दूसरी वायर से, और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि उसमें से हाई वोल्टेज आ रही है या लो, हाई टेम्परेचर है उसका या लो टेम्परेचर है उस वायर का। द स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द थर्मोकपल यूजेज इज शोन इन द फिगर। Briefly, the desired temperature sense is obtained using three inputs: the characteristics function E into temperature of the thermocouple, the measurement of voltage V, and the reference junction temperature T. The solution to the equation E is equal to V plus E yields T sense temperature, means कि temperature जो sense होगा. These details are often hidden from the user since the reference junction block, voltmeter and equation solved are combined into a single product. ये हमारे पास इक्वेशन है जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे और इसके अंदर ये टू वायर्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक को हम हीट करेंगे, उसमें से करंट गुजरेगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो जब हीट अप होगी तो वो दूसरी से डिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। आगे यही प्रोसेस है कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो आप इस सारे
प्रोसेस को रीड आउट कर लें, और अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ भी सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि थर्मोकपल्स आर सेल्फ पावर्ड एंड रिक्वायर्ड नो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एक्साइटेशन। द मेन लिमिटेशन with the thermocouple is accuracy. System error of less than 1 degree Celsius can be difficult to achieve. It can be measure a wide range of temperature in contrast to most other method of temperature measurement. तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, और उससे पहले हमने इसके यूज़ करने के मेथड को देखा, और उससे पहले हमने ये देखा कि ये वर्क किस तरह करता है, और फर्दर इसकी हमने डेफिनेशन और प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया। अगर इस